So today we'll go through the view in SQL. Okay, how view actually works and what is view. So already we know, right? This is just like a brief description. I found it very helpful, so I just pasted here. Okay, a database is a collection of tables storing some meaningful data, right? Database क्या होता है? It's just nothing but multiple tables storing some data, right? Which actually has some meaning, जिसके थ्रू हम लोग कुछ तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? मीनिंगलेस डेटा तो हम लोग स्टोर नहीं करेंगे, राइट? टेबल में मीनिंगलेस डेटा कंपनी कभी स्टोर नहीं करेगा, कुछ तो मीनिंगफुल ही होगा, राइट? All the tables are connected with some form of relation, as we went through last class, right? Last class के वीडियो अगर एक बार go through करोगे, so we have connected through primary and foreign key, right? So most of the tables in a database are connected कुछ ना कुछ relationship के through, जो मैंने बोला था, one to many, many to many, one to one, right? These are relationship. और हम लोग ने entity relationship diagram बनाया था, right? वो diagram जो था उसके थ्रू हम लोग ने देखा था कि कैसे टेबल को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. But the fundamental question is that arise here, why we need to create so many tables and not just a single table. ये भी एक हम लोग ने पढ़ लिया था. क्यों चाहिए हम लोग को multiple table? Multiple tables allow for storing large amount of data in systematic manner, जो कि हम लोग ने normalization में पढ़ा था, right? We covered that. Rather than repeating the same data in single table. So ये normalization वाला concept आ गया और last class में हम लोग ने ये भी पढ़ा था. But we cannot deny the fact that if we want to query some data from this database, we need to bring all relevant tables together to make a new table. मतलब सारे relevant tables को हम लोग join करते थे, right? एक जैसे हम लोग ने दोबारा उसको फिर लास्ट में लास्ट वीक के क्लास में दोबारा उसको ज्वाइन करके लेके भी आया था आउटपुट को, राइट? हम लोग ने एक टेबल को डिवाइड किया मल्टीपल टेबल में, देन वी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, वी क्रिएटेड प्राइमरी एंड फॉरेन की रिलेशनशिप, एंड देन वी अगेन ब्रॉट, right, by joining together. So if we observe this issue closely, we have advantage of storing data in multiple tables in one side. म्यूट हो जाओ, कोई कौन है? So if we observe this issue closely, okay, we have advantage of storing data in multiple tables on one side, but on the other side we have the problem of querying so scattered data. Scattered मतलब इधर उधर पूरा स्प्रेड होके रखा है, उस डेटा को क्वेरी करके एक साथ लाना भी एक प्रॉब्लम है, जो कि हम लोगों ने जॉइन से सॉल्व कर लिया था. The solution to this problem brings SQL views into the picture. SQL views have made managing data and table relatively easy for users. So now you maybe get confused. Ki we already used join to get the data combined from different table. Then how come this view comes now? So we'll go through. Views are virtual tables. Actually, views are nothing but a virtual table. They do not exist in reality in the database. वहाँ पे database में वो लोग table की तरह नहीं रहता है. Hence do not require any storage in the data type. ज़्यादा storage की जरूरत नहीं पड़ता है उनको, ठीक है? ज़्यादा space नहीं लेता है. But इसमें भी तुम्हारा rows and columns similar to real table की तरह ही होता है. Such views are simply made by selecting data field from one or more tables present in the database with some conditions for selecting rows or tables. तो मतलब समझ लो, मोटा मोटा बात इसमें देते हैं. व्यूज क्या है? हम लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल्स होते हैं अपने, राइट? जैसे टेबल्स थे एम्प्लॉय, ये एक जस्ट टेबल है, ठीक है? इसी टेबल का हम लोग एक व्यू बना लेंगे ना, क्रिएट व्यू करके, तो वो व्यू इधर रहेगा डेटाबेस के अंदर. ओके, सपोज आई जस्ट विल गो इन दिस ओनली. ओके, मास्टर डेटाबेस के अंदर जैसे टेबल्स में टेबल्स रहते हैं, राइट? वी हैव ऑल द टेबल्स हियर. सो टेबल्स के नीचे ये हम लोग जो व्यू क्रिएट करता है ना, इसमें रहता है व्यूज, ऑल द व्यूज लास्ट टाइम वी क्रिएटेड, राइट? और व्यू का नाम ऐसे स्टार्टिंग में VW देने के लिए कोशिश करो while creating, ताकि तुमको याद रहे कि हाँ ये व्यू है, ठीक है? But starting with VW means it's a view. We have created a view of that particular table. Okay, so view क्या करता है? You can give, suppose why we use view, there are a couple of reasons. Okay, a view in SQL is simply a virtual table created based on result set of another SQL statement. Virtual table view is created
मतलब व्यू हम लोग क्रिएट करते हैं एक डिफरेंट रिजल्ट सेट के बेसिस में, जो कि एक सीक्वल स्टेटमेंट से आता है. Views were introduced to reduce the complexity of multiple tables and deliver data into a simple manner. Views help us maintain data integrity and provide security to the data. तो कैसे करता है वो? Suppose view hide complexity. कैसे hide करता है complexity? ठीक है. View can help to provide data in a single or simple table, hiding complex queries that requires joining several tables. तो लास्ट क्लास में याद है हम लोग ने बहुत सारे टेबल ज्वाइन किए थे. You guys remember, right? Last class में if you remember, we had this, right? है ना? Yes. याद है कितना सारा ज्वाइन किया? So if you have to give this query to someone, जिसको मतलब मान लो जैसे तुम लोग ऑपरेशन में काम करते हो तो तुम लोग को ये क्वेरी दे दिया कि लो ये तुम लोग हमेशा रन करना और इससे डेटा निकालना और मेरे मेरे को देना. मतलब एक्टिविटी डेट इसमें मान लो तुमको ऐसे भी लिख देगा कि मतलब डेली बेसिस का डेटा कैसे निकालेंगे पता है? जैसे इनर जॉइन वाइन लगा के तुम्हारा डेली डेटा आता है ना, वेयर एक्टिविटी डेट इज डेट, गेट डेट था, सॉरी, गेट डेट. ठीक है, और कास्ट कर देंगे इसको. कास्ट का पता है ना, कास्ट क्यों करते हैं? एस डेट, वो कन्वर्ट करने के लिए डेटा टाइप को. ऑलरेडी वी वेंट समटाइम्स, राइट? देखो डेट में आ गया तो मैं इसको बोल दिया कि भाई जहाँ पे मेरा एक्टिविटी डेट इक्वल टू ये होना चाहिए, मतलब आज का डेट के हिसाब से मुझे एक्टिविटी डेट जो भी आएगा वो ला के दो. इसमें क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आज का डेट था ही नहीं, राइट? अगर मैं तुमको दिखाऊं इसमें आज का डेट है नहीं एक भी. सपोज मैं एक इंसर्ट कर दूं इसमें आज का डेट, मैं तब दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? इंसर्ट इनटू, कहाँ गया ये था ना इंसर्ट, हाँ इंसर्ट. तो मान लो मैं इसमें एक्टिविटी डेट आज का डाल देता हूँ 2/9. ठीक है, क्या हुआ? इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम टेबल डिटेल क्यों ऐसा आ रहा है? ओके, एक्स वाई जी था ना वो डेटाबेस. समझ में आ गया? डेटाबेस को चेंज करना है जहाँ जिस डेटाबेस में तुम्हारा डेटा था. आ गया. अब मैं जाके देखूंगा इसमें वेयर कंडीशन के बगैर ही देखूंगा, तो देखना इसमें आज का डेट भी एक आ गया होगा. ये देखो 2/9 आ गया ना, राइट? 2/9 आ गया. अभी मैं इसको अगर वेयर एक्टिविटी डेट इक्वल टू टुडे करूंगा ना, तो ये टुडे के हिसाब से एक ही लेके आएगा, एक ले आना चाहिए. बट क्यों नहीं ले आ रहा है? रुको, 2/9 आगे पीछे हो गया क्या? ओके, ये 9/1 का 2 लिया शायद, तो मुझे उसको एक बार 9-2 करना पड़ेगा. 9/2 कर देता हूँ. मतलब इसमें डेट मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा अच्छे से लिया नहीं था, ठीक है, कोई जो भी हो. तो अभी देखना, अभी मैं इसके साथ करूंगा तो देखो आ गया. सो तुम लोग को मतलब एक ऐसा क्वेरी बना दिया कि डेली बेसिस में बिफोर यू वर्क फाइंड आउट योर इन्वेंट्री, डेली बेसिस में रन करो. मतलब वो लोग इन्वेंट्री पुश कर रहा है तुम्हारे सिस्टम पे, मतलब डेटाबेस में, और तुम लोग को ही बोल रहा है कि भाई, या तो डेटा एनालिस्ट जो होता है उनको बोला हुआ है कि कोई भी एक जो कि संभालता है, मतलब मैनेजर, मान लो तुम्हारे मैनेजर तुमको वर्क असाइन करता है इधर से निकाल निकाल के, ठीक है? सपोज ऐसा सिस्टम है. कभी कभी होता है ना कि मैनेजर भी देख सकता है, उनको एक्सेस होता है. वो लोग काम असाइन कर रहा है तुमको, कितना पेंडिंग है इधर, पूरा क्वेरी मतलब पेंडिंग का है मान लो, वेयर स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग. अगर स्टेटस भी होता ना कि स्टेटस कंप्लीट है या पेंडिंग है, मान लो वेयर स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग एंड एक्टिविटी डेट इक्वल टू टुडे, मतलब आज के डेट में कितना पेंडिंग है, तो वो ऐसे रन करेगा. और तुम लोग को जितने सारे डेटा आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे 10,000 आ गया, तो उधर से तुम्हारे जो टीम मेंबर्स होंगे उन पे डिवाइड कर देगा वर्क. लेकिन ये कैसा लग रहा है? बहुत टफ लग रहा है ना देखने में, कितना बड़ा क्वेरी है यार. वो जो मैनेजर जिसको इतना सीक्वल का पता नहीं है कुछ भी गलत कर सकता है इधर. तो उस सिनेरियो में व्यूज बना देते हैं ताकि वो सिंपल दिखे, ये ऐसा ना दिखे. कैसे बनाएंगे व्यूज के लिए? एक स्टेटमेंट लिखना होता है बस. ऊपर ऐसे लिख दो, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम दे दो व्यू अंडरस्कोर डेली इन्वेंट्री, कुछ भी नाम दे दो ताकि एक मीनिंगफुल नाम रहे एज. ठीक है, सिलेक्ट, ये क्रिएट कर दोगे ना. अब मैनेजर को तुम ये वाला दे दो,
सो उसको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो बस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, वो व्यू का नाम लिख देगा ना, तो देखना एक ही रो आएगा। मतलब ये व्यू इज नथिंग बट ये पूरा क्वेरी है। और कैसे देख, अगर तुमको देखना है उसका मैं दिखा देता हूँ। व्यू में जाओ, रिफ्रेश मारो, व्यू क्रिएट हो गया होगा ना तुम्हारा। रुको, एक्स वाई जी में कर रहे हैं कि हम लोग एक्स वाई जी में कर रहे हैं, देखो ये भी हिसाब रखना कि कहाँ कर रहे हो, किस डेटाबेस में। एक्स वाई जी में हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए उसमें आए नहीं। देखो व्यू डेली इन्वेंट्री आ गया, इसके अंदर लाइन अगर तुमको क्वेरी देखना है, क्योंकि उनको वो एक्सेस नहीं होगा, उनको वो एक्सेस नहीं होगा कि ये लेवल का कि एडिट वेडिट कर सके। वो बस ऐसे रन कर सकता है एंड तुम लोग को दे सकता है। अगर बस तुम्हारे लिए मैं दिखा रहा हूँ कि हाउ टू चेक, कि इसमें जाके तुम देखोगे ना, व्यू स्क्रिप्ट व्यू एस क्रिएट टू, मुझे एक बार दिखा दो ये क्या लिखा है इसमें। न्यू क्वेरी विंडो, इसमें लिखोगे ना तो देखना इसमें लिखा है, और ऑटोमेटिक मतलब क्या हम लोग ने क्या लिखा था क्वेरी उस व्यू के लिए। तो इसमें देखो, ये सब भूल जाओ, ये तो तुम्हारा वही ऐसे ही कुछ सेट का आता है। लेकिन ये देखो, ये था हमला, यही था ना अपना, क्रिएट व्यू एस सिलेक्ट, यही था ना अपना क्वेरी, यही था राइट। व्यू कर यस। दिया था राइट, अपना क्वेरी तो ये था राइट, सिलेक्ट से लेके यहाँ तक आ गया एक। तो हम लोग ने व्यू क्रिएट व्यू किया था राइट। तो इसीलिए ये सिंपल हो गया ना। अभी देखो, जैसे मैं ये दूं, देखो ये पूरा एकदम लिख के दूं सिलेक्ट वाला, मान लो इतना सारा, ये दूं या ये दूं, कौन सा सिंपल है उसके लिए। एक लेमन जो कि उसको जितना पता नहीं है सीक्वल का, वो बस रन करके उसको डेटा निकालना है, उसके लिए ये जरा टफ रहेगा या ये टफ रहेगा। ऊपर वाला टफ रहेगा। तो हम लोग इसीलिए व्यू क्रिएट करते हैं। सपोज मैं अभी व्यू को चेंज भी कर सकता हूँ, क्रिएट और ऑल्टर। सपोज मुझे अभी व्यू में वेयर कंडीशन नहीं चाहिए, बस कुछ दूसरा कंडीशन चाहिए मान लो। अब भी मैं क्रिएट व्यू करता हूँ, इसको ऑल्टर कर दिया ना, ये व्यू चेंज हो गया। अब मैं इस व्यू को रन करूंगा ना, इसमें वेयर वाला नहीं आएगा, जितना डेटा है मेरा सारा डेटा लेके आएगा। देखो अगर मैं इधर और दोबारा व्यू को चेंज कर देता हूँ, वेयर मुझे दिखाओ टाइम किसका ज्यादा आ रहा है, टाइम मोर देन 30 किसका आ रहा है। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट एन ऑल्टर, और इधर जाके लिखता हूँ तो टाइम 30 वाला आ गया। देखो मोर देन 30, क्योंकि ये मैंने एक्चुअली दिस इज नथिंग बट मेरा सिलेक्ट क्वेरी है। इसको मैंने सिलेक्ट क्वेरी को इजी करने के लिए इसको एक रीनेम कर दिया कि भाई एक व्यू में दिखा दो, एक व्यू बना दो, ठीक है। मतलब एक वर्चुअल टेबल बना दो, व्यू इज नथिंग बट ए वर्चुअल टेबल। जस्ट क्रिएट ए वर्चुअल टेबल फॉर मी with the name of view daily, so that I can send this to a person who think it is a table। उसको लगेगा ये टेबल ही है, उसको जॉइंट वाइंट नहीं दिख रहा है कि मल्टीपल टेबल से आ रहा है, चार पांच टेबल से आ रहा है, उसको पता लग रहा है कि ये भाई एक ही टेबल है। उसके लिए सिंपल हो गया चीज देखने के लिए कि एक ही टेबल है, उसको बस एक्सेस करना है डेटा राइट। सो दैट इज व्हाट it helped to provide data in a single or simple table, hiding the complex queries that require joining several tables। नॉट ओनली ज्वाइन, एक कभी कभी बड़ा टेबल होता है, मान लो बहुत बड़ा टेबल, उसमें से हम लोग को ज्वाइन की जरूरत भी नहीं है, तो हम लोग को बस एक डिपार्टमेंट का देना है सपोज। नेक्स्ट ओके सेकंड उसमें आएगा। सो ये तो हो गया पहले सिंपल, हाइड कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करके सिंपल स्पेस में दे दिया। व्यू कैन बी यूज एज a security mechanism also। व्यू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटा, व्यू provides security to the data। with the help of view we can restrict the column or and rows of a table or tables। टेबल्स टेबल क्यों लिखा है मैंने, ज्वाइन अगर करके तुम व्यू बनाओगे तो मल्टीपल टेबल्स आएगा। अगर एक ही टेबल्स पे बना रहे हो, वेयर कलर्स यूज कर रहे हो, देन ओनली टेबल आएगा। तो व्यू कैन बी मेड with join also, without join, anything like this allows access only to the data that a user needs to see। Suppose example, if you have a customer table, you might want to give all of your sales people access to the name, address and phone number etc। मतलब मान लो तुम्हारे कस्टमर टेबल है बड़ा सा, सेल्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सेल्स पीपल उधर से नंबर, एड्रेस एंड नेम चाहिए उसको, ताकि तुम लोग को कॉल कर सके और बोल सके कि इधर स्विगी में इस एरिया पे, मतलब इस रेस्टोरेंट में ये ऑफर्स है। कॉल आता है ना तुम लोग को राइट। तो बट उनको हम लोग को क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन नहीं देना है सेल्स टीम को। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन भी अपने पास है, मतलब लास्ट 4 डिजिट और कुछ भी, लेकिन उनको देना नहीं है।
उनको बस तुम्हारा नंबर देना है ताकि वो लोग कुछ मिस यूज ना करे, राइट। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन क्रिएट ए व्यू ओनली, जहां पे हम लोग कॉलम्स इंक्लूड करेंगे कि भाई तुमको बस यही डेटा का एक्सेस दे रहे हैं, राइट। हम लोग सिलेक्ट स्टार की जगह सिलेक्ट कॉलम का नाम लिख देंगे एंड विल क्रिएट ए व्यू। कैसे करेंगे दिखाता हूँ। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय था ना, एक एम्प्लॉय बड़ा सा टेबल, नहीं इसमें नहीं था, मास्टर में था, एम्प्लॉय, ये था, राइट। तो मुझे उसका सैलरी नहीं दिखाना है। सपोज मुझे एक टेबल चाहिए, उसमें से मैं कुछ डेटा भेज रहा हूँ किसी एक मैनेजर को, बट आई डोंट वांट टू सी सॉ हिम एनी सैलरी, बिकॉज सैलरी एक इंटीग्रिटी है ना, सैलरी दूसरे का क्यों दिखाएंगे हम लोग। उसके अपने बंदे का देख सकता है वो, लेकिन दूसरे का टीम का क्यों देखेगा, राइट। क्योंकि ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का है, देखो सेल्समैन का भी है, मैनेजर भी है। तो इसीलिए क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टार की जगह हम लोग एम्प्लॉय, उसको क्या क्या डेटा चाहिए, मान लो उसको चाहिए एम्प्लॉय आईडी चाहिए, सिलेक्ट, पहले ले आता हूँ फ्रॉम, ताकि मेरे को कॉलम नेम ये मुझे दे दे आराम से, ना कि ढूंढते रहना पड़े। सपोज एम्प्लॉय का नाम चाहिए उसको, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एंड एम्प्लॉय लास्ट नेम चाहिए। ऑल्सो उसको वो भी चाहिए कि मुझे जॉब का वो डिस्क्रिप्शन दे दो उनका, बस। तो उसको इतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए। और मान लो उसका हायरिंग डेट का कुछ कर रहा है वो, मतलब कितना डेट में हायरिंग हुआ था, वो सब, तो उसको यही चार चाहिए। तो उसको मैं बाकी कॉलम क्यों दूंगा, तो उसको मैं अगर ऐसे दे दूंगा तो वो तो देख ही पाएगा ना कि भाई ओके एम्प्लॉय टेबल है क्या। फिर मैं ये कॉलम हटा के, क्योंकि सबको तो सिलेक्ट स्टार पता ही होता है ना, वो बोलेगा कि मैं ऐसे देख लेता हूँ, रुको, अरे मुझे तो सब दिख गया, फिर अभी सैलरी है ना, कमीशन, तो उसको मुझे दिखाना ही नहीं है ना। इट्स ए सिक्योरिटी ब्लीच, राइट। ही शुड नॉट सी दिस सैलरी एंड कमीशंस। सो उसके लिए हम लोग एक व्यू क्रिएट करके दे सकते हैं, और उसमें हम लोग एक्सेस का लिमिट लगा देंगे सिक्योरिटी का, कि भाई वो एडमिन लगाता है, तुम नहीं लगाओगे, ठीक है। क्रिएट व्यू, ठीक है, मान लो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय इन्फो एस, बस। अब क्रिएट करके दे दो, आ गया। अब मैं उसको ये वाला दे दूंगा एम्प्लॉय टेबल की जगह, उसको बताना नहीं है मुझे कौन सा टेबल से क्रिएट कर रहा है। देखो बस इतना ही आ गया, व्यू बन गया, ये तो व्यू है, राइट। उसको पता ही नहीं है, उसको लगा कि ठीक है इधर से आ रहा है स्टार पूरा, तो वो इधर से डाटा ले लेगा। अब सपोज इसमें मान लो तुम्हारे एनालिस्ट वाला जो बंदा है, एनालिस्ट के बारे में ही मुझे देखना है, ठीक है। तो मैं ये सब क्यों देखूंगा दूसरे के बारे में, तो मैं वेयर कंडीशन लगाऊंगा, राइट। सो मान लो इसमें मैं लगा दिया, सपोज यही है मेरा, ठीक है। इसमें मेरे को नाम चाहिए एन वेयर, मतलब रो लेवल में तो हम लोग कर ही सकते हैं, कॉलम लेवल में भी कर सकते हैं, रो लेवल दोनों में कर सकते हैं। मतलब ये क्या था, हम लोग कॉलम लेवल में कर लिया था कि यही सब कॉलम दिखाओ, ओनली शो मी दिस कॉलम्स, एंड नाउ वी आर also applying condition to restrict the row levels, okay, where job equal to only salesman का दिखाओ, ठीक है। और सेल्समैन अपर केस में है, सेल्समैन, सेल्समैन का दिखाओ, ठीक है। तो मैं बस सेल्समैन का दिखाना है, उसको डेटा चाहिए बस सेल्समैन का ही, तो मैं बाकी का क्यों दूं। तो क्रिएट व्यू में ये लिख दो। अब देखना उसको मैं क्रिएट कर दूंगा, क्या, ओके ऑल्टर लिखना है ना, सॉरी, क्रिएट और ऑल्टर एक्स वाई डालोगे। व्यू होगा। हाँ क्रिएट करो, या तो ऑल्टर कर दो, अगर है एग्जिस्टिंग तो ऑल्टर कर दो, अगर नहीं है एग्जिस्टिंग तो नया क्रिएट बना दो, ठीक है। तो क्रिएटर ऑल्टर किया तो मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब मैं जाके देखूंगा, तो देखना वो जो था ना चार, देखो फोर ही आया सेल्समैन वाला जो इसमें था। तो उसको ये पता नहीं लग रहा है कि टेबल में क्या क्या डेटा है, उसको बस ये मिल रहा है तो इधर से वो उठा रहा है, राइट। तो व्यू इसीलिए क्रिएट होता है, और व्यू एक्चुअली ये टेबल नहीं है, ये कोई टेबल नहीं बन गया इधर, ये बस एक वर्चुअल टेबल है जो एक्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं इसी टेबल को।
ये जो एम्प्लॉय डेटा था ना, ये एम्प्लॉय टेबल को ही कनेक्ट कर रही है जाके। जैसे मैं इसमें बनाया ना व्यू अभी, ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसी में से बना रहा है। अगर मैं एम्प्लॉय टेबल को डिलीट मार दूंगा ना, देखना व्यू काम नहीं करेगा। ये जो एम्प्लॉय इन्फो है, ये अभी डेटा दे रहा है राइट, अगर मैं उसी को कुछ कर दूं तो व्यू ही काम नहीं करेगा, क्योंकि वो डेटा ही नहीं रहेगा उसका। ये बस एक वर्चुअली हम लोग बनाया है रेफरेंस करके। तो ये एक चीज हो गया। और लेस स्पेस, being a virtual table, views take very little storage since the database contains only a view statements definition, not a copy of the table। ये टेबल को कॉपी करके नहीं रखता अपने स्पेस में, बस टेबल को रेफरेंस देता है, और जो सिंपल सा नॉर्मल सा कुछ डेफिनेशन चाहिए उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो व्यू कैन अपडेट टेबल, ठीक है। सो अभी जैसे हम लोग ने व्यू बनाया राइट, सो उसमें एक क्वेश्चन भी पूछता है मोस्टली, कैन वी अपडेट व्यू, ठीक है, क्योंकि व्यू इज ए वर्चुअल टेबल, वो टेबल नहीं है राइट। जैसे ये तो व्यू बना दिया, इट्स जस्ट ए वर्चुअल टेबल, इट्स नॉट ए टेबल इटसेल्फ, ठीक है। तो व्यू में हम लोग अपडेट इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं, राइट। पहले ये देखते हैं कि व्यू क्या क्या होता है अगर मैं टेबल को ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सपोज मैं ये टेबल जो था इसको ही ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप, या तो उसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट। जैसे एम्प्लॉय टेबल में डिलीट स्टार नहीं आता है, क्या स्टार लिखा रहा हूँ। सो अभी जैसे मैं ये टेबल दिखाता हूँ, मेरा ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल में क्या था, डेटा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में मेरा इतने सारे डेटा थे, उसमें से मैं टीम और किम को हटा रहा हूँ, टीम और सैम को। डिलीट फ्रॉम, ठीक है, डिलीट स्टेटमेंट याद है ना, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, मैं वेयर कंडीशन लगा दिया, अदरवाइज पूरा ये डिलीट हो जाता है। तो वेयर कंडीशन लगा दिया ताकि मुझे ओनली दोस टू गेट डिलीटेड, टू रोज इफेक्टेड, और मेरे से टेबल से टीम एंड सैम चला गया, ठीक है, टीम एंड सैम नहीं है। अभी मैं ये वाला जो स्टेटमेंट था क्रिएट के बाद, व्यू क्रिएट करने से पहले जो ये लिखा था ना सेल्समैन, तो इसमें देखना कितना आएगा। अभी सेल्समैन में दो ही है, दो ही आया। तो व्यू में भी ऑटोमेटिकली अपडेट करे बिना, व्यू में अपडेट नहीं किया मैंने, डिलीट से पहले व्यू क्रिएट किया था राइट। तो व्यू को अगर रन करूंगा ना, देखना वो ऑटोमेटिकली वो जो चेंजेस था टेबल में व्यू भी ले लिया, देखो। सो रिमेंबर, व्यू इज बेस्ड ऑन टेबल, दिस इज नथिंग बट ए वर्चुअल टेबल। सो टेबल में कुछ भी चेंज होता है ना, व्यू ऑटोमेटिकली टेक डेट। समझ में आ गया। यस। मान लो दूसरा एक टेबल का व्यू बनाता हूँ सिंपल सा, ताकि मैं तुमको क्रिएट और उसका दिखा दूं। जैसे इसमें क्रिएट और वो था ना ऑलरेडी टेबल, जैसे ये टेबल एम्प्लॉय टेबल था। आई जस्ट शो यू समथिंग इन टेबल एम्प्लॉय राइट, वेयर इज टेबल एम्प्लॉय, ओके टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। सो लेट मी क्रिएट दिस टेबल, लेट मी इंसर्ट दिस डेटा, ठीक है। सो नाउ लेट मी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था टेबल डेटा क्या है, एम्प्लॉय टेबल, ओके। सो ये आ गया मेरे पास। अभी मुझे इसमें से दिखाना है कि वेयर एम्प्लॉय आईडी, मतलब मान लो कुछ भी डिपार्टमेंट ही मान लो, कुछ भी मतलब बहुत सारे कुछ कर रहा हूँ, मान लो वेयर एम्प्लॉय आईडी। तो एज ए एग्जाम्पल तुम लोग समझ लो इसको, ठीक है। इक्वल टू 404 303, मुझे 303 का डेटा दिखाना है बस। तो इसी के लिए मैं इसी का एक व्यू क्रिएट कर दिया, क्रिएट व्यू 303 का डेटा, ठीक है, एस आ गया। अब मैं उसको ये दे दूंगा, सिलेक्ट उसको दे दूंगा कि भाई इससे सिलेक्ट करके निकाल लो डेटा। और व्यू में भी ओवर कंडीशन लगा सकता है, दिखाऊंगा बाद में कैसे लगाता है, क्या लगाता है। सो व्यू आ गया। अगर मैं टेबल को अभी डिलीट कर दूं ना, ये टेबल देखना ड्रॉप, ठीक है, सॉरी ड्रॉप टेबल, ये अगर टेबल को डिलीट कर दूं अभी,
अब सिलेक्ट टेबल, देखो ये टेबल नहीं है, इसमें एरर देगा। तो व्यू भी देखना, व्यू में भी एरर दी है, क्योंकि व्यू बोल रहा है कि मैं जिस टेबल से लाना चाह रहा हूँ टेबल तो है ही नहीं, मैं क्या दूं आपको। could not use view or function view because of binding error. Binding error means actually it is binding to table. ये है ही नहीं तो कहां से आएगा। अब देखना, अगर वो टेबल सिमिलर स्ट्रक्चर में दोबारा क्रिएट कर दो ना, तो मुझे दोबारा क्रिएट व्यू करने की जरूरत नहीं है। दिस एग्जिस्टिंग व्यू ऑटोमेटिकली विल टेक माय डेटा। देखना, अभी अभी मैं क्रिएट टेबल कर रहा हूँ, व्यू नहीं करूंगा, ठीक है, क्रिएट व्यू नहीं करूंगा मैं, समझो। टेबल को डिलीट कर दिया, अब मेरे पास टेबल नहीं है, फिर दोबारा मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट किया, दोबारा डाटा इंसर्ट कर देता हूँ उधर। अब क्रिएट कर दिया ना, अभी इंसर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखना व्यू तुमको एरर नहीं देगा, मतलब व्यू तुमको अभी क्रिएट के हिसाब से बस यही दे रहा है, क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं है। व्यू में क्या था, ये था ना एम्प्लॉय आईडी 303, कि मेरे पास डेटा नहीं है तो एटलीस्ट ये दे देगा कि मेरे पास एम्प्टी डेटा। अब मैं जब इंसर्ट करूंगा डेटा इधर टेबल में, तब देखना व्यू ऑटोमेटिकली विल गिव मी माय रिक्वायर्ड डेटा, और दोबारा दे दिया, देखो। तो वही समझो कि व्यू, ऑल्दो टेबल गॉट डिलीटेड, व्यू एग्जिस्ट विद द वर्चुअल इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग सेटअप किया, बट इट विल नॉट गिव यू एनी रिजल्ट, बोलेगा कि तुम्हारा बाइंडिंग एरर है बिकॉज टेबल नॉट डजंट एग्जिस्ट। लेकिन तुम दोबारा अगर टेबल को रिट्रीव कर लिया विद द सेम इंफॉर्मेशन, सेम टेबल नेम, तब ये तुमको अगेन द व्यू विल वर्क एज इट वाज अर्लियर। ओके, समझ में आ गया। Yes. और मैं बोल रहा था ना, व्यू में भी तुम वेयर से मतलब सब कुछ लगा सकते हो, व्यू में भी वेयर कंडीशन सब कुछ लगा सकते हो। जैसे मैंने ये व्यू किया था ना एम्प्लॉय इन्फो, इसमें मेरे व्यू था ना ये एम्प्लॉय इन्फो, इसमें मेरा ये आ गया था। तो इसमें भी तुम वेयर कंडीशन लगा सकते हो, इवन इन व्यू, वेयर एम्प्लॉय एफ नेम इक्वल टू पॉल। तो ये व्यू के अंदर ही हम लोग फिल्टर भी लगा सकते हैं। ओके, सो ये समझो कि व्यू इज नथिंग बट जस्ट टू सिंप्लीफाई माय क्वेरी, कि मैं रोज रोज इतना, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेरी है, तुमको मतलब 100 200 लाइंस का क्वेरी भी रहेगा, तुम बार बार जाके उसमें कुछ रन करते रहोगे, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि तुम कुछ ना कुछ इधर टाइपो वाइपो मिस कर दो, कहीं स्पेस आ जाए, कहीं डिलीट हो जाए, कभी ये हो जाए, तो ये फिर रन ही नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारा स्पेस आ गया, तुम फिर ढूंढते फिरोगे मैंने कहा गलती किया यार, क्या किया, ओके स्पेस दिया। उससे अच्छा तुम व्यू क्रिएट कर लो, व्यू से तुम अपना डेली का एक्टिविटी करो, कुछ इधर चेंज करना है तो जाके टेबल में तुम चेंज कर लो और व्यू को ऑल्टर कर लो दोबारा। सपोज इधर मेरे पास दूसरा एक टेबल ज्वाइन हो गया, तो अगर और एक टेबल ज्वाइन हो गया तो व्यू को फिर ऑल्टर कर लो, क्रिएट एन ऑल्टर वाला विद द न्यू क्वेरी, तो दोबारा व्यू बन जाएगा। ठीक है, एंड नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, लाइक यू कैन अपडेट डीएमएल, data manipulation language, right? We studied this, right? DDL, DQL, DML. So DML में क्या आता था, update is nothing but a DML statement, right? DML command. So you can, that means वो manipulate करे डेटा को, तो तुम अपडेट स्टेटमेंट भी रन कर सकते हो व्यू में, अगर क्वेश्चन पूछे तुमको रन कर सकते हो, बट देयर आर सम कंडीशंस। अगर द व्यू इज क्रिएटिंग यूजिंग मल्टीपल टेबल, then also you can use update if it is used a perfect normalization and with the constraints। ठीक है, you can update those tables too using the view when tables, मतलब अगर व्यू में अपडेट करोगे तो तुम्हारा टेबल भी अपडेट होगा। when tables get deleted then the view remains with no data, जो मैंने तुमको बोला था। when tables get dropped the view still remains but cannot be accessed। could not use view or function view name because of the binding errors, binding error दिया था तुम लोग को। later when we recreate the table which was dropped earlier, जो हम लोग ने already practice किया, can be accessed using the same view which we created without recreating it। recreate करने की जरूरत नहीं है, already था, उसी से हम लोग कर सकते हैं। समझ गए। तो अभी मैं अपडेट वाला इंसर्ट वाला एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग ने व्यू बनाया था इसका, राइट, ये एक व्यू बनाया था, करेक्ट। ये एक सिंपल टेबल था, व्यू एक सिंपल टेबल से बनाया था, उसमें कुछ भी ज्वाइन नहीं था ना कुछ था, राइट। अब मैं देखता हूँ व्यू के थ्रू इंसर्ट कर सकते कि नहीं, या अपडेट कर सकते कि नहीं, तो अपडेट, ठीक है, व्यू,
अपडेट, अपडेट में हम लोग को सेट स्टेटमेंट आता है, राइट? सेट एम्प्लॉय नेम, मतलब हम लोग सेट मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय नेम को इक्वल टू क्या करना है, चेंज करो अनामिका से अना तक, अना अना कर दो अनामिका को, ठीक है? किसका, किसको चेंज करना है, किस रिकॉर्ड को लिखना भी होगा ना, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, मतलब एम्प्लॉय आईडी जहां पे तुमको 303 दिखे उसको तुम उसके उसके रोज में जो एम्प्लॉय नाम कॉलम है उसको अनामिका से अना कर दो। अपडेट व्यू करूंगा, ठीक है? पहले टेबल भी देख लो एक बार, टेबल में कहीं अना अना बोल के कुछ नहीं है। अभी देखो अपडेट व्यू करेंगे, वन रो इफेक्टेड, अब तुम टेबल में जाके देखोगे ना, तुम्हारा टेबल भी चेंज हो गया, और टेबल चेंज हुआ इसीलिए व्यू भी चेंज हुआ। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन, कैन वी अपडेट ए टेबल यूजिंग व्यू? ये क्वेश्चन पूछता है, तो यू कैन टेल यस, वी कैन अपडेट if the table is only single table, or if it is multiple also, but with proper constraint and proper normalization applied, like primary key foreign key constraint, ये सब ठीक है, तब हम लोग अपडेट कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली अप्लाइड नहीं है तो नहीं होगा, तो उसका एग्जांपल भी गो थ्रू करेंगे। जैसे ये अपडेट हो गया, राइट? इसमें अपडेट हो गया। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं, व्यू में इंसर्ट करेंगे तो टेबल में जाएगा कि नहीं? टेबल में तो इंसर्ट कर लिया था हम लोग ने, तो अभी इंसर्ट भी लिख के देखो, इंसर्ट इनटू व्यू, व्यू का नाम, टेबल की जगह व्यू का नाम डाल दो, मतलब व्यू इज नथिंग बट ए टेबल ओनली, इज जस्ट ए वर्चुअल टेबल। तो अभी वैल्यूज डालो, वैल्यूज पूरा कॉलम के लिए डालना पड़ेगा, जो तीनों कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी मान लो 505 डाल दिया, मैं इंसर्ट कर देता हूँ व्यू में। देखो वन रो इफेक्ट, टेबल में जाके देखो, टेबल में आ गया ये अरुण बोल के, व्यू में भी आ गया क्योंकि टेबल में आ गया। तो वी कैन इंसर्ट ऑल्सो, वी कैन अपडेट ऑल्सो, वी कैन इंसर्ट ऑल्सो। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ व्यू का, इसी को मैं एक व्यू बनाया था ना इसका, सपोज इसका एक बार व्यू बना देता हूँ, व्यू क्रिएट व्यू एम्प्लॉय वी डब्ल्यू टेस्ट लिख देता हूँ, चलो एज, एज आएगा, ठीक है? इसके बाद एज इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, सिंपली क्रिएट व्यू, व्यू का नाम दो एज, ठीक है? ऑलरेडी है बोल रहा है तो मैं इसको टेस्ट 2 कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक व्यू था उसमें कहीं दूसरा एक, ठीक आ गया। तो इसको मैं अभी इसमें देखता हूँ अपडेट अपडेट हो रहा है कि नहीं इसके थ्रू। तो इसमें अपडेट हो जाएगा, देखना, क्योंकि अपडेट हम लोग अगर एक टेबल से कर रहे हैं ना, एक टेबल का, ये देखो ये टेबल का ही है, ये डिफरेंट टेबल का है। मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, अपडेट दिस, ठीक है सर, सेट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम को अगर तुम अपडेट कर रहे हो इक्वल टू चंदू फ्रॉम चंद्रलेखा, ओके? वेयर किसको करना है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101, ठीक है? अगर एम्प्लॉय आईडी 101 है ये, तो चंद्रलेखा को चंदू में सेट एम्प्लॉय नेम चंदू कर दो, ठीक है? अपडेट कर दो, दोबारा व्यू को रन करो, देखना सारे चंदू आ गया। और ये क्या बोला था, वन रिकॉर्ड, मतलब किस टेबल में गया होगा, जो एम्प्लॉय का कहाँ पे था, ये टेबल में देखना चंद्रलेखा का चंदू हो गया होगा। तो ये ज्वाइन के साथ भी अपडेट कर सकता है, देखो चंदू आ गया, करेक्ट? विद द ज्वाइन ऑल्सो इट कैन अपडेट, ठीक है? लेकिन इंसर्ट कर सकता है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। इंसर्ट, लेकिन इंसर्ट क्यों नहीं कर पाएगा मैं बताता हूँ। इंसर्ट का मैंने इधर लिख के रखा था ये वाला, ठीक है? जैसे ये मेरा टेबल था, व्यू था, मैं बोल रहा हूँ कि जो जो कॉलम है इसका उसको इंसर्ट कर दो।
देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एक्टिविटी, एक्टिविटी डेट, कॉन्टैक्ट, टाइम, मिनट्स, लोकेशन, ठीक है। तो इसमें लिख दिया मैंने 101 ब्रेक, ठीक है। क्योंकि मुझे 101 क्या लिखा, क्योंकि वो कंस्ट्रेन है ना, कि मान लो इसमें दूसरा लिखता हूँ 501 लिख देता हूँ, 501, ठीक है। इसमें है नहीं तो प्राइमरी की जाएगा। देन और क्या था प्राइमरी की, ब्रेक तो था ही, फॉरेन की था, ठीक है। 501 इसमें मान लो कुछ दूसरा लिखता हूँ, अनिल। तो अभी ट्राई करते हैं इंसर्ट करने के लिए। बिकॉज मॉडिफिकेशन अफेक्ट्स मल्टीपल बेस टेबल, समझ रहे हो, मतलब ये इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम जो इंसर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो व्यू को, उसमें बहुत सारा टेबल जुड़े हुए हैं, तो उसको तुम इंसर्ट नहीं कर पाओगे। अपडेट कर पा रहे थे, सपोज एक्टिविटी, एक्टिविटी एक्टिविटी को सब में वो कर दो, एंड टाइम, एंड टाइम इन मिनट्स इक्वल टू 20। अगर मेरा चंद्रलेखा है एंड टाइम इन मिनट्स 20 है, तो एक्टिविटी को ब्रेक की जगह वो कर दो, टी ब्रेक कर दो, टी कर दो। अगर मैं अभी अपडेट करूं, मतलब समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं। एम्प्लॉय आईडी 101 को देखो, प्लस टाइम जो मिनट है उसको 20 देखो, 20, ये चंद्रलेखा का इसमें एक ही है 20 ये, तो इस लाइन को ब्रेक की जगह टी कर दो, या तो लंच कर दो, लंच कर देता हूं क्योंकि उसमें भी और वो आएगा ना, लंच कर देता हूं। तो देखना अपडेट हो गया, राइट। अब देखना अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने इसमें अपडेट में ना स्पेसिफिकली, अगर मैं इसमें टी कर दूंगा तो देखना क्या होता है, अपडेट हो गया। लेकिन एक्टिविटी टेबल में अगर जाओगे, एक्टिविटी टेबल क्या था, एक्टिविटी टेबल में हम लोग टी का तो रखा ही नहीं था, फॉरेन की कुछ भी, लेकिन क्यों अपडेट हो गया वो देखते हैं। देखो टी आ गया, ब्रेक की जगह टी हो गया, तो ब्रेक को ही हटा दिया इसने, समझे, तो टेबल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया पूरा। तो अभी ये टी ब्रेक इसमें पूरा पूरा क्वेरी लिखोगे ना, तो देखना जो तुम्हारा क्वेरी था उसमें देखना ब्रेक सबके लिए ब्रेक हट गया, तुमने चंदू के लिए किया था, बट फॉर एवरीवन इट चेंज्ड, फॉर एवरीवन टीटी आ गया, क्यों हुआ। तो इसीलिए जब अपडेट करते हो ना मल्टीपल टेबल में, मल्टीपल टेबल वाला व्यू में, देयर इज ए पॉसिबिलिटी तुम थोड़ा कुछ उल्टा सीधा कर दो। तो इसलिए बेटर नॉट टू यूज व्यू टू अपडेट, डायरेक्टली टेबल में अपडेट करो। तो इसमें तुमने एक्चुअली तुमने बोला कि सेट कर दो टी, और ये दोनों दोनों अगर मैच होगा तब टी, बट ये तो एक्टिविटी टेबल का है ना, तो ये एक्टिविटी टेबल में ही जाके चेंज कर दे रहा है ब्रेक को टी। तो दोबारा पहले की फॉर्म पे लेके आता हूँ जो पहले था, अब देखना पहले के हिसाब से आ जाएगा, एक्टिविटी में ब्रेक आ गया। सो यू नीड टू केयरफुली डू दिस व्हाइल अपडेटिंग मल्टीपल टेबल वाला। इंसर्ट तो कर नहीं सकते हो क्योंकि इसमें मल्टीपल टेबल है, कहा क्या जा रहा है कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए उसको इंसर्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसमें बोला गया था नॉर्मलाइज, अगर देन यू कैन अपडेट दोस टेबल्स, ओके। इंसर्ट भी कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते हो अपडेट कर सकते हो। इंसर्ट वेयर यू कैन डू व्हेन ए सिंगल टेबल व्यू इज क्रिएटेड, सिंपल व्यू, जैसे ये वाला था, ये क्या है, एक सिंगल टेबल से ही है ना व्यू, ये व्यू जो है ये सिंगल टेबल से है, ये वाला, मतलब इसका कोई ज्वाइनिंग नहीं था। इसको डिलीट कर दिया क्या मैंने, समझे, समझ में आया अभी तक, मैं कुछ कंफ्यूजन है। तो व्यू क्यों यूज करते हैं पता है, व्यू इसीलिए यूज करते हैं ताकि मैं ये जो बोला यही है रीजन, कि ये मेरे को सिंपल वे पे दे देता है, किसी को अगर डेटा निकालना है बस ये दे दूंगा मैं। एंड इट्स ए सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो, ताकि जो अनरिक्वायर्ड कॉलम एंड रोज है, देयर आर टू रीजंस ओनली, हिसाब याद रखो कि व्यूज का यूज किया है मोस्टली, यही है, ये इसमें लिखा ही है कि भाई ये हाइट कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल बना देता है, एंड व्यू कैन बी यूज एज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ये सेकंड वाला है, क्योंकि व्यू हम लोग को बस स्पेसिफिक कॉलम एंड रो पे ही एक्सेस देता है देखने के लिए,
ओके। एंड आई वाज टेलिंग राइट, जैसे हम लोग सब क्वेरी का पढ़ाई कर रहे थे, उसको भी व्यू में डाल सकते हो, कुछ भी व्यू में डाल सकते हो यार। सब क्वेरी का आ गया। जैसे क्वेरी प्राइमरी फॉरेन, ये सब जो विंडोज कीज था, ये सब देखते हो, विंडोज की कोई डाल देंगे कहीं, जैसे ये था, इसका भी व्यू बना सकते हो। मास्टर में था क्या? हाँ मास्टर में था, ओके। सो ये डेटा दे दिया तुमको, इसको तुम ऐसे व्यू बना के, ये तुम दूसरे को क्यों दोगे, राइट? इसमें तुम व्यू बना के भी दे सकते हो। क्रिएट व्यू रिजल्ट सेट, ठीक है, कुछ भी रिजल्ट सेट लिख दो एस, और तुम ये दे दो बना के, कमांड सक्सेसफुल, तो उसको तुम ये दे दो कि भाई इससे निकाल लो। इससे देखना जो डेटा सेट आएगा वो इसमें भी आ रहा था, राइट? तो व्यू को तुम व्यू क्रिएट कहीं भी कर सकते हो, जैसे 1000 लाइन है तुम्हारा, बहुत कुछ लिख रहे हो, सब क्वेरी वब क्वेरी को रिलेटेड बहुत कुछ लिख के तुमने एक फाइनल क्वेरी निकाल लिया है रिजल्ट सेट, उसको तुम व्यू में डाल दो, बस हो गया। तुमको डेली बेसिस में ये सब देखने की जरूरत नहीं है, व्यू में देखो बस। व्यू में अगर अभी अभी तुमको व्यू में कुछ करना है, तुमने मतलब एक आइटम निकाल लिया जो कि तुम्हारा बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, अब तुम व्यू में बाकी काम भी कर सकते हो, व्यू में भी तुम दोबारा वेयर कंडीशन हैविंग ग्रुप बाय सब कर सकते हो। वेयर सिटी, मुझे सिटी अभी चेन्नई चाहिए, तो सिटी इक्वल टू चेन्नई कर सकते हो। चेन्नई का व्यू के हिसाब से चेन्नई दे देगा उसी व्यू में, ये व्यू था, ठीक है। समझे कुछ? समझ में आ गया? व्यू का काम क्या होता Yes. है? Yeah. So view is nothing but just to give you वैसे यूजुअली व्यू में क्या अपडेट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। व्यू में अपडेट क्या करना है, अगर तुमको कुछ भी अपडेट करना है तो तुम हम्म, जिसको जिससे तुमको मिला है डेटा, तुम तो बस यूज कर रहे हो ना, यू हैव ओनली सिलेक्ट, हम्म। तुमको एक्सेस ही नहीं होगा, यू कैन ओनली सिलेक्ट, राइट? तुमको व्यू इसीलिए नहीं, बना वो के नहीं दिया बोली, ना। मतलब इन रियल सिनेरियो मतलब कितना यूज होता है अपडेट करने के लिए देखो व्यूज तुम में? अगर इसमें देखा, अभी हम लोग ने अपडेट कर पाए, अगर तुमको पता है कि एक सिंगल टेबल का व्यू है, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर, तुमने ये व्यू क्रिएट किया, तुमको सब पता है, तुम व्यू में भी अपडेट कर सकते हो, बट रियल सिनेरियो में हम लोग व्यू में अपडेट नहीं करते मोस्टली। मोस्टली टेबल, क्योंकि मेरे को अगर अपडेट एक्सेस है तो मेरे को टेबल एक्सेस भी होगा, एंड आई विल बी नोइंग दैट किस टेबल से क्या है, तो उस टेबल में जाके अपडेट कर लूंगा ना मैं, व्यू में क्यों ही करूं। बट क्वेश्चन आ सकता है तुमको, ये सब क्वेश्चन इसीलिए आएगा क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है, ताकि वो देखते हैं कि तुमको कुछ पता है कि नहीं, तुमने कितना प्रैक्टिस किया है, तुमको कितना प्रैक्टिकल लेवल में है अंडरस्टैंडिंग, तो इसीलिए पूछा जाता है। तो यू कैन Okay. से कि वी कैन डू अपडेट insert in the view also with the help of view to the table, but it's restricted if it is a single table view, or it's multiple table view also possible if the join and constraint and normalization is perfectly placed, then only, otherwise it will give an throw an error। single table view में, in single table view we can do insert because उस व्यू का टेबल ही एक है, तो इंसर्ट भी उस टेबल के कॉलम के हिसाब से हो जाएगा, अगर कॉलम नेम और डिफाइन कर दे एंड वैल्यूज डिफाइन कर दे, ठीक है। सिंपल आंसर टू दैट, Yes. बस। बट यूजुअली तुम जो क्वेश्चन पूछा, बेस्ट प्रैक्टिस व्यू में क्यों ही अपडेट करना है, एंड व्यू जिसको तुम दोगे उसको कुछ भी एक्सेस नहीं होगा, वो बस उस व्यू को रन कर पाएगा कि भाई डेटा निकालने के लिए मैं रन कर रहा हूँ, बस। उसको एक्सेस नहीं होगा कि इसमें कुछ भी कर सके, परमिशन लेवल होता है ना। एंड तो ये हो गया व्यू।